बीटेक ख़त्म होने के बाद या इन जनरल ग्रेजुएशन ख़त्म होने के बाद करियर की बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि आगे क्या करना है। कुछ लोग जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, कुछ लोग मास्टर्स करना चाहते हैं, लाइक एमटेक करना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं। कुछ एक आध ऐसे होते हैं जो थोड़े बहुत एक ग्रुप में जो कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने के लिए हिम्मत जुटाते हैं। अभी जो सारी की सारी फील्ड्स मैंने आपको बताई, ये सभी बहुत इंटरेस्टिंग हैं एंड मोस्ट ऑफ देम हैव ह्यूज मनी. Now it totally depends on you that what factors are you considering while deciding that what do you want in your career. So hi everyone, my name is Shivangi Tiwari and welcome back to my channel. अब क्योंकि हम सारे फील्ड्स का डिस्कशन एक ही वीडियो में नहीं कर सकते, so today let's talk about MTech versus MBA. We are going to do a detailed analysis जिसके बाद आपको एक informed decision लेने में काफ़ी हेल्प होगी. Because हम जो कुछ भी पढ़ाई कर रहे हैं या जो भी हम अपने करियर में टारगेट कर रहे हैं, उसका इवेंचुअल गोल है एक अच्छी जॉब. A job that gives you job satisfaction and not frustration, a job that gives you growth in career, a job that pays you at least 20 to 30 lakhs per year and much more. अब क्योंकि ये करियर का एक बहुत क्रूशियल डिसीजन है, तो आपको ये डिसीजन काफ़ी सोच समझ के लेना चाहिए so that you gain all of what you are expecting from your job. So now let's summarize that what all things we are going to discuss in today's video. I'll discuss everything in 6 pointers. So the first pointer will be what is MBA and what is MTech. The second pointer will be the difference between MBA and MTech. Third, the entrance exam that you have to give for both MTech as well as MBA. Then we will understand the best colleges and the fee structure of these colleges, like the average fee that you have to pay. Next, we are going to talk about the job opportunities in both the fields and what packages you will be offered. And as the sixth pointer, we are going to discuss the demand of both the fields and what you should choose. Video काफ़ी डिटेल होगी and I'll try to make sure that you understand all the basic differences between MBA versus MTech, and at the end of the video you should be able to take the decision if you are stuck. Now without any further ado, let's start the video and discuss about our first pointer, that what is MTech and what is MBA. तो MBA stands for Masters of Business Administration and MTech stands for Masters of Technology. ये तो हमको बहुत अच्छे से पता है. तो अगर आपको बिजनेस, कंसल्टिंग, मैनेजमेंट या लीडरशिप स्किल्स में इंटरेस्ट है, देन यू शुड गो फॉर MBA. एंड अगर आपको टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट, रिसर्च इन सब में इंटरेस्ट है, देन MTech इज द फील्ड फॉर यू. आई नो इस तरीके से डेफिनेशन बताने से समझ में नहीं आता, सो लेट्स अंडरस्टैंड द क्लियर डिफरेंसेस बिटवीन MTech एंड MBA. So the first thing is MBA focuses on business, leadership, marketing, HR, management, consulting, finance, and on the other hand, MTech focuses on engineering, technology, research, development and mainly the technical subjects. अब MBA में एंट्रेंस लेने के लिए आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता. आपने किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन करी है, आप एंट्रेंस एग्जाम दे के MBA में एडमिशन ले सकते हो. बट MTech के लिए आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग होना चाहिए या यू शुड हैव अ बैकग्राउंड विच इज सम वे और द अदर रिलेटेड टू इंजीनियरिंग. नाउ टॉकिंग अबाउट द कोर्स ड्यूरेशन, तो जो MBA का आपका टाइम ड्यूरेशन होता है कोर्स का, दैट इज बिटवीन 1 year to 2 year, एंड MTech के लिए आपका जो कोर्स ड्यूरेशन होता है दैट इज मोस्टली 2 years. सो ये तो हो गए आपके डिफरेंसेस बिटवीन MTech एंड MBA. Now let's talk about the entrance exams that you have to give if you want to get admission in MBA and what all entrance exams you have to give if you want to get admission in MTech. So MBA के entrance के लिए काफ़ी सारे national और state level exams हैं, जैसे कि CAT, ZAT, MAT, CMAT, SNAP, NMAT, ATMA, etc. and state level entrance exams like MAH, CET, AP ICT, TS ICT, OJEE, KMAT. ये जो सारे के सारे एग्जाम्स हैं, चाहे आपके नेशनल लेवल के एग्जाम्स हो, चाहे आपके स्टेट लेवल के एग्जाम्स हो, MBA के एंट्रेंस में जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली एप्टीट्यूड बेस्ड होते हैं. लाइक यू विल गेट क्वेश्चंस ऑन न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, वर्बल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल एप्टीट्यूड. अब बात करें MTech के एंट्रेंस एग्जाम की, तो गेट एक बहुत ही पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम है फॉर गेटिंग एडमिशन इन MTech. इसके अलावा भी काफ़ी सारे स्टेट लेवल एग्जाम्स हैं, जैसे OJEE, MAH, CET, AP ICT etc. इन एग्जाम्स को भी देकर अगर आप स्टेट लेवल के कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हो तो आप एडमिशन ले सकते हो. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द एंट्रेंस सिलेबस ऑफ MTech एग्जाम, तो MTech के लिए आपको 2 चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं. पहले तो आपको कोर फील्ड पढ़नी पड़ती है एंड दूसरा आपको जनरल एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन करनी पड़ती है. अब कोर फील्ड में 30 से ज़्यादा फील्ड एरियाज़ हैं जिसमें आप एक्सपर्टीज़ गेन करने के लिए पढ़ सकते हो, या ऐसा कह सकती हूँ मैं कि जिस भी फील्ड में आपको आगे जाना है उससे रिलेटेड आपको स्टडीज़ करनी होती है. तो बेसिकली आपके 2 एग्जाम्स होते हैं, एक आपको कोर पे फोकस करते हैं एंड दूसरा आपका न्यूमेरिकल, वर्बल और लॉजिकल एप्टीट्यूड पे.
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे पता है कि आप में से कई सारे लोग कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड थ्रू आउट द प्रिपरेशन ऐसा लगता रहता है कि पढ़ तो रहे हैं यार, लेकिन पता नहीं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी तो रह ही जाती है। लाइक हम नोट्स भी बना रहे हैं, प्रॉपर रिविजन्स भी कर रहे हैं, बट फिर भी समथिंग और दी अदर ऑलवेज लैग्स बिहाइंड। एंड स्पेसिफिकली कैट की प्रिपरेशन के टाइम पे तो ये भी दिमाग में आता है कि क्या इतना स्कोर आ जाएगा कि आई विल बी एबल टू टॉप कैट या आई विल बी एबल टू गेट वेरी गुड परसेंटाइल। सो आई नो कि पढ़ना इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप खुद को टाइम टू टाइम टेस्ट करते रहो। एंड इसी जगह पर टेस्ट सीरीज़ का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, बिकॉज टेस्ट सीरीज से एक तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है। सो टेस्ट सीरीज़ के लिए मैं आपको पास एलीट की कैट टेस्ट सीरीज़ रेकमेंड करूँगी। इसमें ऐसे फीचर्स हैं जो आपकी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे। अब इनके फीचर्स को थोड़ा मैं आपको डिटेल में बताऊँ। सो फर्स्ट थिंग इज दे हैव 45 चैप्टर टेस्ट। अब हर एक चैप्टर को आप इन डेप्थ पढ़ोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सेकंड थिंग इज दे हैव 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। अब फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने से क्या होता है, आपको वो कैट के एग्जाम जैसा माहौल मिलता है मॉक टेस्ट देने से। नेक्स्ट दे हैव 14 प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। अब प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाने से हमें ना एक पेपर का पैटर्न पता चलता है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं, इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाना भी इसीलिए बहुत ज़रूरी है। नाउ व्हाई डू यू नीड पास एलीट? तो हर टेस्ट के बाद आपको एनालिसिस मिलेगा एंड एनालिसिस से बेनिफिट ये होता है कि यू गेट टू नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एंड उससे आपके सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो 50% ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो नाउ दैट यू नो कि कैट में टॉप करने के लिए सिर्फ प्रिपरेशन ज़रूरी नहीं है, एक अच्छी टेस्ट सीरीज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड दैट इज़ वाई आई विल अगेन रिकमेंड यू टू चेक आउट पास एलीट। सो यू कैन यूज़ माई कूपन कोड शिवांगी टू गेट इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। लिंक एंड कूपन कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डोंट फॉरगेट टू चेक आउट। नाउ लेट्स मूव ऑन इन द वीडियो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक कि ओवरऑल कोर्स की फीस क्या होती है, बोथ MBA एंड MTech, एंड व्हाट आर द बेस्ट कॉलेजेस जिनको आप टारगेट कर सकते हो। तो अगर MBA के फीस की बात करें हम, तो आपकी फीस 2 लाख से लेके 30 लाख तक रेंज कर सकती है फॉर द एंटायर कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट। कोई सेमेस्टर वाइज में बात नहीं कर रही हूँ, पूरे के पूरे कोर्स की 2 लाख से लेके 30 लाख के बीच में होगी। टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट दी IIMs, तो आपकी IIMs की फीस 15 लाख के ऊपर ही है, 15 से 25 लाख के बीच में जनरली है ज़्यादातर IIMs की फीस। अब टॉप कॉलेजेस की बात करें तो डेफिनेटली IIMs का नाम पहले ही आता है। IIMs मीन्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें कि IIM अहमदाबाद, IIM कोलकाता काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा आपके आते हैं XLRI जमशेदपुर, जो कि काफ़ी नोन कॉलेज है। देन यू हैव FMS दिल्ली, सिम्बायोसिस पुणे, IIFT, SP जैन, TIS मुंबई, ISB हैदराबाद। ये सारे के सारे ही टॉप कॉलेजेस की लिस्ट में आते हैं। सो आप अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं। एक बार आपका एंट्रेंस क्लियर होता है, देन यू हैव GD ग्रुप डिस्कशन राउंड, जिसके बाद आपका फाइनल कॉलेज में सिलेक्शन होता है। सिमिलरली अगर हम MTech की फीस की बात करें तो ये कहीं ना कहीं 1 लाख से लेके 3 लाख के रेंज के बीच में आती है फॉर द होल कोर्स। एंड MTech में जनरली बच्चों को स्टाइपेंड भी मिलता है, 12, 13, 14 हज़ार रुपए तक का स्टाइपेंड भी आपको मंथली मिलता रहता है। तो MBA के कंपैरिजन में MTech की फीस काफ़ी कम है। एंड अगर मैं IITs की भी बात करूँ तो IITs की भी फीस 1 से 2 लाख रुपए के बीच में ही होती है। अब MTech के टॉप कॉलेजेस की बात करूँ तो डेफिनेटली IITs का नाम सबसे पहले आता है। उसमें भी IIT मुंबई, देन IIT दिल्ली, IIT धनबाद, ये सारे के सारे ही कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं। देन आपके NITs आते हैं और बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस आते हैं। कुछ अच्छे कॉलेजेस की लिस्ट में दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, BITS, VIT, SRM, ये सब भी आते हैं। सो ये तो हो गया आपके कॉलेज का फीस का स्ट्रक्चर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सैलरी एंड द पैकेज दैट विल बी ऑफर्ड टू यू आफ्टर द कोर्स कंप्लीशन। सो ऑफकोर्स आप इतनी पढ़ाई करोगे, इतनी मेहनत करके एंट्रेंस क्रैक करोगे, इतना पैसा दे के पढ़ोगे, तो आप डेफिनेटली एक अच्छा ROI एक्सपेक्ट करोगे, अच्छी जॉब तो डेफिनेटली एक्सपेक्ट करोगे आप। सो पैकेज से भी पहले लेट्स डिस्कस कि अगर आप MBA करते हो तो आप किन किन जॉब रोल्स के लिए या किन किन फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप MTech करते हो तो आप किन किन फील्ड्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो आफ्टर डूइंग MBA यू कैन गो इनटू सेल्स एंड मार्केटिंग, देन फाइनेंस, देन ह्यूमन रिसोर्स, IT एंड सिस्टम्स, एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स, मैनेजमेंट, ये सारी की सारी फील्ड्स में आप जा सकते हो डिपेंडिंग ऑन द स्पेशलाइजेशन दैट यू हैव डन। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द एवरेज पैकेज दैट यू कैन गेट आफ्टर डूइंग MBA। सो MBA करने के बाद आपको 7 लाख से लेके 12 लाख तक का एवरेज पैकेज तो एटलीस्ट मिल ही जाएगा। एंड दिस पैकेज गोज टू 70 लाख टू 100 lakhs डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज फ्रॉम वेयर यू हैव डन योर कोर्स। नाउ IIMs के पैकेज की बात करूँ तो एवरेज आपका पैकेज 20 LPA के ऊपर ही होता है इफ़ यू हैव कंप्लीटेड योर MBA कोर्स फ्रॉम एनी ऑफ द गुड IIMs। अब अगर हम बात करें कि आफ्टर डूइंग MTech आप कौन कौन से जॉब रोल्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, सो यू कैन अप्लाई फॉर सीनियर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, रिसर्च एनालिस्ट, वेब डिज़ाइनिंग, फूड रिसर्च, IT एंड सॉफ्टवेयर फर्म्स, अर्बन डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट, डिज़ाइन इंजीनियर,
machine learning engineer, AI engineer, assistant professor, scientist, research expert, consultant, professor या lecturer. The highest package that MTech graduates can get is between 28 LPA to 50 LPA. एवरेज पैकेज की मैं बात करूँ तो आपको 6.7 का एवरेज पैकेज मिल सकता है. मीडियन पैकेज की बात करूँ आपका तो दैट विल बी 5.5 LPA एंड अगर लो पैकेज मिलता है सो दैट विल बी एटलीस्ट 3.5 LPA. अब जैसे कि हमने जॉब रोल्स और पैकेजेस भी डिस्कस कर दिए हैं, नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो कि डिमांड किसकी ज़्यादा है, एमटेक वालों की या MBA वालों की, एंड डिसाइड कैसे करना चाहिए. ऑनेस्टली स्पीकिंग डिमांड दोनों ही फील्ड की बहुत ज़्यादा है क्योंकि दोनों ही फील्ड्स काफ़ी ज़्यादा वास्ट हैं एंड जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ और टेक्नोलॉजीज़ बढ़ रही हैं MBA वालों की भी उतनी ही ज़रूरत है और MTech वालों की भी उतनी ही ज़रूरत है. बट अगर अब हम ये बात करें कि आपको चूज़ कैसे करना चाहिए तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है आपकी प्रीवियस डिग्री जो भी रही हो या करंट आपका जॉब रोल है. तो अगर आपको मैनेजमेंट फील्ड में इंटरेस्ट है देन यू शुड गो फॉर MBA. अगर आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है देन यू शुड गो फॉर योर MTechs. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द प्रीवियस जॉब रोल, सो अगर आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रखी है या इंजीनियरिंग की जॉब कर रखी है और आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए इन टेक्नोलॉजी ओनली देन ऑल्सो यू कैन गो फॉर MTech. बट इसके अलावा अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से हो या किसी भी आर्ट्स की फील्ड से हो, फाइनेंस की फील्ड से हो, कोई भी फील्ड से हो एंड आपको मैनेजमेंट फील्ड में शिफ्ट करना है, लीडरशिप फील्ड में शिफ्ट करना है देन ऑल्सो यू कैन गो फॉर MBA. इसके बाद अगर हम सैलरी या अर्निंग पोटेंशियल की बात करें तो MBA ग्रेड्स जनरली गेट हायर सैलरी एज कम्पेयर टू MTech ग्रेड्स. बट अगर आपकी कोई स्पेशलाइज्ड फील्ड है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या और भी ऐसी बहुत सारी एमर्जिंग फील्ड्स हैं जिसमें अगर आपको MTech के बाद स्पेशलाइजेशन है सो देन यू कैन डेफिनेटली अर्न अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज ये जो फील्ड्स है ना इसमें डिमांड और सप्लाई का बहुत ज़्यादा गैप है. डिमांड ज़्यादा है एंड सप्लाई कम है, तो इसलिए ऐसी जो स्पेशलाइज्ड फील्ड होती हैं इसमें बहुत अच्छे पैकेजेस मिलते हैं. बाकी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमें कंसिडर करना ही चाहिए, वो ये है कि दोनों ही कोर्स अगर आप रेप्यूटेड कॉलेज से करोगे, अच्छे कॉलेज से करोगे तो ही वैल्यू फॉर मनी ज़्यादा मिलेगा. अगर आप किसी भी ऐसे वैसे कॉलेजेस से कर लोगे तो इतनी कोई गारंटी नहीं होती है, बस डिग्री लेने से कुछ नहीं होता है. नाउ टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, सो MBA टिपिकली एक्सपेंसिव है, आपका ईजिली 17 to 20-25 lakhs तक लग जाएगा फॉर डूइंग द कोर्स. बट हाँ, इसके बाद यू कैन एक्सपेक्ट अ हाई पेइंग जॉब. अब वही अगर MTech की बात करें तो MTech में आपका कॉस्ट फॉर द कोर्स भी लेस है एंड सिमिलरली अगर आप स्पेशलाइज्ड स्किल की तरफ नहीं जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा आप हाई सैलरी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो. एक सजेशन मेरी तरफ से कि अगर आप BTech कर रहे हो और आप MTech सिर्फ इसलिए करना चाह रहे हो ताकि आपका हाई सैलरी पैकेज पर जॉब लग जाए तो इट इज़ नॉट एग्जैक्टली ट्रू. आई वुड से अगर MTech के लिए आपको अच्छे कॉलेजेस नहीं मिलते हैं, अगर अच्छा कॉलेज मिल रहा है देन तो इट इज़ वेल एंड गुड. बट अगर कोई एवरेज सा कॉलेज मिल रहा है तो आई वुड से कि जॉब कर लो एंड क्योंकि जब तक तुम्हारा MTech ख़त्म होगा उतने में तुम अगर स्विच कर लोगे तो तुमको उतना पैकेज मिल जाएगा एंड ऑल्सो MTech में भी तो तुम इन्वेस्ट करोगे, तो वो भी सोच समझ के तुमको डिसीजन लेना चाहिए कि जो भी करना है एक इन्फॉर्म डिसीजन होना चाहिए. एंड येस, एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद स्कोर के बेसिस पे एनालाइज करो प्रॉपरली दैट विच कॉलेजेस यू आर गोइंग टू गेट एंड इज इट वर्थ इन्वेस्टिंग द मनी. आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी क्योंकि जॉब्स के बारे में तो मैं हमेशा बात करती रहती हूँ. ये थोड़ा ऑफ टॉपिक था बट इस पर भी डिस्कशन करना ज़रूरी था. ऐसी अगर और वीडियोस चाहते हो तो कमेंट में बताओ कि किस पर कंपैरिजन चाहिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी. बाकी अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन so that you get notified whenever I post my new video. Thank you so much.